رات بہت خاموش تھی۔ آسمان پر چاند آدھا چھپا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ سو چکے تھے، مگر ایک چھوٹے سے گھر میں چراغ ابھی تک جل رہا تھا۔ اس چراغ کی مدھم روشنی میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی اور دل میں بہت سے سوال تھے۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ ایک غریب مگر نہایت با اخلاق اور نیک دل لڑکی تھی۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، مگر ایمان اور صبر کا خزانہ ضرور تھا۔ لیکن اس رات عائشہ کا دل بے چین تھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ہی سوال کر رہی تھی: یا اللہ، کبھی کبھی نیک لوگوں کے ساتھ بھی اتنی آزمائش کیوں آتی ہے؟ یہ سوال شاید ہر اس انسان کے دل میں آتا ہے جو مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہی سوال اس کہانی کی اصل بنیاد ہے۔ مگر یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں ہے، یہ کہانی صبر، ایمان اور اللہ پر یقین کی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو شروع میں اندھیرا لگتا ہے، مگر آخر میں ایک ایسی روشنی بن جاتا ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لیکن اس کہانی کی اصل شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ سب اس دن سے شروع ہوا جب عائشہ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ اس دن گاؤں میں بہت چہل پہل تھی۔ بازار میں لوگ خریداری کر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور مسجد سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، مگر عائشہ کے گھر کے اندر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ عائشہ کی ماں کئی دنوں سے بیمار تھیں، گھر میں دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ عائشہ ہر روز اللہ سے دعا کرتی: یا اللہ، میری ماں کو شفا دے دے۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹی رکھتی اور خاموشی سے روتی بھی رہتی۔ ایک دن عائشہ نے اپنی ماں سے کہا: امی، فکر نہ کریں، اللہ بہت مہربان ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ماں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا: بیٹی، یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی مشکل وقت دراصل اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ عائشہ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہ سکی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ اسی رات ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو عائشہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ رات کی آخری پہر جب سب سو رہے تھے، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ چونک گئی۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہاں ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ بوڑھے نے نرم آواز میں کہا: بیٹی، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ عائشہ نے فوراً انہیں اندر بٹھایا اور پانی لا کر دیا۔ بوڑھے نے پانی پیا اور عائشہ کی طرف غور سے دیکھ کر کہا: بیٹی، تمہاری آنکھوں میں بہت دکھ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، یہ اجنبی آدمی میرے دل کا حال کیسے جان گیا؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا: یاد رکھو، جب اللہ کسی بندے کو آزمائش دیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص طاقت بھی رکھ دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ آزمائش ہی انسان کو سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ عائشہ خاموشی سے سنتی رہی، مگر بوڑھے نے جاتے جاتے ایک عجیب بات کہی: کل صبح تمہاری زندگی میں ایک ایسا دروازہ کھلے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ عائشہ حیران رہ گئی، یہ آدمی کون تھا اور وہ کون سا دروازہ تھا جس کے کھلنے کی بات وہ کر رہا تھا؟ رات گزر گئی اور صبح ہونے والی تھی، مگر عائشہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح اس کی زندگی میں ایسا راز کھلنے والی ہے جو نہ صرف اس کی تقدیر بدل دے گا بلکہ پوری گاؤں کے لیے ایک بڑا سبق بن جائے گا۔ اور اسی لمحے سے ایک کہانی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ صبح کی اذان کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور سورج کی ہلکی ہلکی روشنی زمین پر پھیلنے لگی تھی، مگر عائشہ کی آنکھوں میں ابھی تک نیند نہیں تھی۔ پوری رات وہ اس بوڑھے آدمی کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ بار بار خود سے یہی سوال کر رہی تھی: وہ آدمی کون تھا، اور اس نے جو بات کہی تھی، کیا واقعی آج کوئی دروازہ کھلنے والا ہے؟ اسی سوچ میں وہ اٹھی، وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: یا اللہ، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، اگر میری زندگی میں کوئی خیر آنے والی ہے تو مجھے صبر اور شکر عطا فرما۔ دعا کے بعد اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ ادھر اس کی ماں ابھی بھی بستر پر کمزور لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ نے ان کے پاس جا کر آہستہ سے کہا: امی، آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں نے مسکرا کر جواب دیا: بیٹی، اللہ کا شکر ہے، تم فکر نہ کرو، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ عائشہ نے چولہے پر پانی رکھا اور تھوڑی سی چائے بنائی۔ گھر میں کھانے کو زیادہ کچھ نہیں تھا، صرف تھوڑی سی خشک روٹی تھی، مگر عائشہ نے ہمیشہ کی طرح شکر ادا کیا۔ اسی دوران اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ عائشہ چونک گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے فوراً رات والے بوڑھے کی بات یاد آ گئی۔
वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई और दरवाजा खोला। बाहर गांव का एक आदमी खड़ा था जिसका नाम हाजी साहब था। वो गांव के सबसे मुअज़्ज़िज़ और नेक इंसानों में शुमार होते थे। उन्होंने कहा, बेटी आयशा, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आयशा ने एहतराम से कहा, जी हाजी साहब, आए, अंदर तशरीफ़ लाएं। वो अंदर आए और चारों तरफ नजर दुराई। घर की सादगी और गुर्बत देखकर इनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आयशा से कहा, बेटी, मैं कल रात मस्जिद में बैठा था, वहाँ एक मुसाफिर आया था, उसने तुम्हारा जिक्र किया। आयशा हैरान रह गई। इसने फौरन पूछा, क्या वो एक बुरे आदमी थे? हाजी साहब ने सर हिलाया। हाँ बेटी, वही थे। उन्होंने कहा था कि इस गांव में एक लड़की है जिसका दिल बहुत साफ है। वो अपनी बीमार माँ की खिदमत कर रही है और कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। हाजी साहब ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और आयशा को दिया। उन्होंने कहा, मुसाफिर, ये तुम्हारे लिए देकर गए थे। आयशा के हाथ कांपने लगे। इसने आयशा से लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर कुछ पैसे थे और एक छोटा सा कागज। इस कागज पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पैसे इतने थे कि इसकी माँ का इलाज हो सकता था। इसने फौरन आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू वाकई अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस दिन आयशा पहली बार समझ गई कि कभी कभी मुश्किल वक्त दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है और जो इंसान इस इम्तिहान में सब्र करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसी मदद देता है जो इंसान के तसव्वुर से भी बाहर होती है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल हैरत तो इस वक्त हुई जब कुछ दिन बाद गांव वालों को पता चला कि वो पूरा मुसाफिर अचानक गायब हो गया था। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। कुछ लोग कहते थे वो एक नेक अल्लाह वाला था और कुछ कहते कि वो सिर्फ एक मुसाफिर था। मगर आयशा के दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई थी, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखता है तो अल्लाह अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देता है। कुछ दिन गुजर गए। आयशा की माँ का इलाज शुरू हो चुका था। दुआइयाँ और आराम की वजह से इनकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर होने लगी थी। आयशा हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती और सोचती कि वो पुरस्कार बुरा आदमी शायद अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक मदद था। मगर आयशा के दिल में एक सवाल अब भी बाकी था, वो आदमी था ही कौन? कभी कभी वो रात को बैठकर इसी के बारे में सोचती। इसके अल्फाज, इसकी आंखों की गहराई और इसकी बातें, सब कुछ अजीब लगता है। एक दिन आयशा गांव के कुएं से पानी भरने जा रही थी कि सूरज ढलने वाला था और आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। गांव की औरतें भी पानी भरने आई हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। अचानक एक औरत ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? कल रात गांव के पुराने रास्ते पर एक अजीब वाकया हुआ। सब औरतें हैरान हो गई। क्या हुआ? इस औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा, किसी ने बताया कि रात को वहां एक बुरा आदमी नजर आया था, मगर जब लोग इसके पास पहुंचे तो वो अचानक गायब हो गया। ये सुनते ही आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे फौरन वो रात याद आ गई जब वो बूढ़ा इसके दरवाजे पर आया था। आयशा खामोशी से पानी भरकर वापस घर आ गई, मगर इसका दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। इसी रात जब वो नमाज ईशा पढ़कर फारिग हुई तो इसकी माँ ने इसे अपने पास बुलाया। आयशा, बेटी इधर आओ। आयशा इनके पास बैठ गई। माँ ने आयशा से कहा, बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी अम्मी। माँ की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारे वालिद एक नेक आदमी की मदद किया करते थे। वो एक मुसाफिर दरवेश था जो कभी कभी हमारे गांव आता था। आयशा हैरान हो गई। फिर क्या हुआ अम्मी? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, एक दिन तुम्हारे वालिद ने इस दरवेश की बहुत बड़ी मुश्किल में मदद की थी। इस दिन इस दरवेश ने कहा था कि अगर कभी तुम्हें मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह किसी न किसी जरिए से तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। आयशा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। क्या ये मुमकिन है कि वही दरवेश दोबारा आया हो? ये सवाल इसके जहन में गर्दिश करने लगा। इसी वक्त बाहर तेज़ हवा चलने लगी, दरख्तों के पत्ते हिलने लगे और फ़ज़ा में अजीब सी खामोशी फैल गई। अचानक दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब इसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई खड़ा नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा हुआ था। आयशा ने हैरत से इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसने थैला उठाया और अंदर ले आई। जब इसने थैला खोला तो इसके अंदर कुछ सिक्के और एक पुराना कागज़ था। कागज़ पर लिखा था, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी ना कभी वो लौट कर ज़रूर आती है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरी हिकमत वाकई बहुत बड़ी है। इस लम्हे आयशा को समझ आ गया था कि ज़िंदगी में अगर इंसान नेकी करे, सब्र करे और अल्लाह पर यकीन रखे तो अल्लाह किसी न किसी तरह इसकी मदद ज़रूर करता है। मगर आयशा की ज़िंदगी में भी एक और इम्तिहान आने वाला था। एक ऐसा इम्तिहान जो इसके ईमान को और मजबूत करने वाला था और जिसके बाद पूरा गाँव इसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाएगा। इस रात के बाद आयशा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। कभी इसे लगता कि वाकई अल्लाह किसी न किसी ज़रिए से इसकी मदद कर रहा है और कभी इसे हैरत होती कि आखिर वो पुरस्कार बुरा आदमी कौन था। चंद दिन गुजर गए। गांव में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। पीछे बच्चे खेल रहे थे और मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज़ें सुनाई देती थी। मगर अचानक एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। लोग एक दूसरे से
कह रहे थे हाजी साहब के घर चोरी हो गई है। ये सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। हाजी साहब गांव के सबसे नेक और इज्जतदार इंसान थे। इनके साथ ऐसा होना सबके लिए हैरत की बात थी। लोग इनके घर के बाहर जमा हो गए। आयशा भी वहां पहुंच गई। हाजी साहब बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया, कल रात मेरे घर से एक संदूक चोरी हो गया है जिसमें कुछ पैसे और अहम चीजें थी। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। इसी दौरान एक आदमी ने अचानक कहा, मैंने रात को किसी को इस तरफ जाते देखा था। सब ने फौरन पूछा, किसको? इस आदमी ने उंगली उठाकर कहा, मुझे लगता है कि आयशा थी। ये सुनते ही सब लोग खामोश हो गए। आयशा हैरान रह गई। इसने घबरा कर कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो रात को अपने घर में थी। मगर कुछ लोग शक करने लगे। कुछ दिन पहले इसके घर अचानक पैसे आए हैं। शायद इसी ने चोरी की हो। ये बात सुनकर आयशा के दिल पर जैसे चोट लगी। वो रो पड़ी, मैंने कोई चोरी नहीं की, अल्लाह गवाह है। मगर शक की फिजा गांव में फैल चुकी थी। आयशा की माँ को जब ये खबर मिली तो वो भी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने आयशा से कहा, बेटी, सच हमेशा जीतता है, तुम फिक्र ना करो। आयशा रात भर रोती रही। इसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है। अगर मैं बेगुनाह हूँ तो सच्चाई को जाहिर कर दे। रात बहुत गुजर गई। हर तरफ खामोशी थी। अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए हाजी साहब के घर की तरफ जा रहे थे। आयशा भी बाहर आई। पता चला कि गांव के बाहर एक शख्स पकड़ा गया है जिसके पास वही संदूक था जो चोरी हुआ था। जब लोगों ने इससे पूछा तो इसने सच बता दिया, मैंने ही चोरी की थी। आयशा का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। हाजी साहब खुद आयशा के घर आए। उन्होंने कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम पर शक किया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मगर इसने कहा, कोई बात नहीं हाजी साहब, इंसान से गलती हो जाती है। मगर इसने आयशा से कहा, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इस वाक़े के बाद पूरे गांव में आयशा की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग कहने लगे, ये लड़की वाकई बहुत साबिर और नेक है। इस दिन आयशा को एक बड़ी हकीकत समझ आ गई। कभी कभी इंसान पर इल्ज़ाम लग जाता है, मगर अगर वो सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो सच खुद जाहिर हो जाता है। मगर आयशा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था। वो राज जो इस पर असरार बुरे आदमी से जुड़ा हुआ था, और जब वो राज सामने आएगा तो पूरा गांव हैरत में पड़ जाएगा। चोरी वाले वाक़े के बाद पूरा गांव का माहौल बदल गया था। अब लोग आयशा को पहले से भी ज़्यादा इज्जत देने लगे थे। हर कोई इसकी सब्र और नेकी की तारीफ करता था। मगर आयशा के दिल में अभी भी एक सवाल जिंदा था, वो बुरा आदमी कौन था? कभी कभी वो रात को आसमान की तरफ देखती और सोचती कि शायद वो एक आम मुसाफिर नहीं था। एक दिन आयशा मस्जिद के करीब से गुजर रही थी। वहाँ गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। आयशा भी करीब जाकर बैठ गई। एक बुजुर्ग कह रहे थे, कई साल पहले हमारे गांव में एक दरवेश आया करता था। वो बहुत नेक इंसान था। लोग कहते थे कि इसकी दुआएं बहुत कबूल होती थीं। वह दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मैंने भी इसे देखा था। वो अक्सर गरीबों की मदद करता था और खामोशी से चला जाता था। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने आयशा से पूछा, वो दरवेश कहाँ गए थे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, कई साल पहले वो अचानक गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। ये सुनकर आयशा को अपनी माँ की बात याद आ गई। शायद वही दरवेश दोबारा आया था। इसी रात आयशा अपने घर के बाहर बैठी आसमान को देख रही थी। चांदनी रात थी और हल्की हवा चल रही थी। इसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर वो वाकई तेरी तरफ से भेजी गई मदद थी तो मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे के करीब कोई खड़ा हो। आयशा ने चौंक कर इधर देखा। वहाँ कोई नहीं था, मगर ज़मीन पर एक छोटा सा पुराना कागज़ पड़ा हुआ था। आयशा ने वो कागज़ उठाया। इस पर लिखा था, याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब इंसान सच्चे दिल से इस पर भरोसा करता है तो वो अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देता है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह, मैं हमेशा तुझ पर भरोसा रखूंगी। इस दिन के बाद आयशा की ज़िंदगी बदल गई। वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी, लोगों की मदद करने लगी और हर मुश्किल में सब्र करने का दर्स देने लगी। लोग दूर दूर से इसकी बातें सुनने आया करते थे और हर बार आयशा एक ज़रूर बात करती, ज़िंदगी में अगर मुश्किल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि अल्लाह अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर देता है। इस कहानी का मोरल लेसन ये है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।